So students, now we are going to read the latter part of this chapter, The Lost Child. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he will knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. Farther. There was a roundabout in full swing. Men, women, and children, carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. यहाँ तक समझते हैं बच्चों? गुलमोहर के जो गुलदस्ते थे उसके लिए तो वो देख करके आगे बढ़ ही गया. थोड़ा आगे बढ़ने पर उसको एक व्यक्ति मिला जो एक डंडी, एक लकड़ी के सहारे बहुत सारे पीले, लाल, हरे बैलून्स यानी ढोल फुला करके बेच रहा था. बच्चे को बहुत खूबसूरत लगे वो रंग बिरंगे इंद्रधनुषी रंगों वाले बैलून्स, और उसकी इच्छा हुई वो सारे के सारे ढोल, सारे के सारे बैलून्स खरीद ले. लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके पेरेंट्स बैलून नहीं खरीद के देंगे. वो यही बोलेंगे कि तुम काफ़ी बड़े हो गए हो इन बैलून्स के हिसाब से, इन बैलून्स के हिसाब से तुम काफ़ी बड़े हो गए हो तो तुम्हें बैलून्स नहीं मिलेगा. इसलिए वो आगे बढ़ गया. थोड़ा आगे बढ़ने पर उसको एक सांप का खेल दिखाने वाला व्यक्ति मिला जो अपनी बीन बजा रहा था, और उसके किसी एक डब्बे से सांप बाहर अपना फन निकाल करके नाच रहा था. सांप का फन बतख के गर्दन की तरह लग रहा था, खूबसूरत. हालांकि हम सभी जानते हैं कि सांप के कान नहीं होते, फिर भी सांप ऐसे नाच रहा था जैसे कि झरना डोल रहा हो. बच्चा जो था वो स्नेक चार्मर यानी कि सांप वाले के पास आता है, लेकिन उसको पता है कि उसके पापा मम्मी देख करके उसको डांटेंगे, बोलेंगे कि इस प्रकार के म्यूजिक को सुनने की क्या ज़रूरत है. वो थोड़ा पास जाता है सांप वाले के, लेकिन फिर आगे बढ़ जाता है. थोड़े आगे जाने पर उसको एक बहुत बड़ा झूला मिलता है जो पूरे स्विंग के साथ, पूरी गति के साथ घूम रहा था. मेन, वुमेन, बच्चे सब उस गति के साथ घूमने वाले झूले में घूम रहे थे और खूब खिलखिला करके हंस रहे थे. बच्चे ने उसे ध्यान से देखा और उसके बाद रिक्वेस्ट किया, पूछ ही लिया अब की बार उसने माता पिता को कि पापा मम्मी मैं इस झूले में झूलना चाहता हूं. There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. A full, deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, Mother, father. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken,
He ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he walked, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. Having fun to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. His cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass he could see, through his filmy eyes, men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो स्टूडेंट्स, बड़ा अजीब हुआ, अभी बहुत ही अजीब घटना हुई कि जैसे ही वो मुड़ा और जैसे ही वो बोला अपने माता पिता को कि मैं इस झूले को झूलना चाहता हूँ, और उनका हाँ या ना सुनने के लिए जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि माता पिता उसके पीछे नहीं हैं। वो आसपास में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, न उसके आगे, न पीछे, न बाएं, न दाएं। वो चारों तरफ देख लेता है, उसको कहीं दिखाई नहीं देते। वो अचानक उसका गला भर आता है, वो रुआंसा हो जाता है, रोने को आता है, और उसी क्षण ये समझने के बाद कि माता पिता उसके इर्द गिर्द कहीं नहीं है, वो उस जगह को छोड़ करके दौड़ पड़ता है, दूर दूर तक दौड़ता है और रो रो के चिल्लाता है कि मम्मी पापा, मम्मी पापा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह चलते हैं, और अब की बार डर के आंसू थे। ये बिल्कुल डर के आंसू थे जो उसकी आंखों से बह रहे थे। वो बेहद डर गया था। एक दिशा से दूसरी दिशा, दूसरी दिशा से तीसरी दिशा, वो भागे जा रहा था, भागे जा रहा था, ये जानने के लिए कि उसके माता पिता कहाँ हैं। उसे पता नहीं कि उसके माता पिता कहाँ हैं। रोए जा रहा है, पूछते जा रहा है, रोए जा रहा है, पूछते जा रहा है। उसके पापा ने उसको एक पीले रंग की टोपी पहनाई थी, पीले रंग की पगड़ी उसके सर पर बांधी थी, वो भी खुल जाती है इस भाग दौड़ के चक्कर में, और उसके कपड़े भी शायद एक आध जगह वो थोड़ा गिर गया होगा, उसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा मिट्टी से सन जाते हैं। बार बार यहाँ वहाँ भागने के कारण कुछ समय बाद वो बेहद थक जाता है। बेहद थक जाता है तो एक जगह रुक करके वो बहुत दिल खोल करके पूरे दुख में और डर में वो खूब 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 रोता है। आसपास में वो देखता है कि कई आंखें उसे देख भी रही है और कई लोग आपस में बातें कर रहे हैं। कई सारे जो है पुरुष, कई सारी औरतें, कई सारे बच्चे बातें कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि ये माहौल ही ऐसा है कि उस माहौल में हंसना, बातें करना एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया होती है इंसानों की। इंसान अगर किसी अच्छे खुशनुमा माहौल में जाते हैं तो आमतौर पर खुशी जाहिर करते हैं और खूब बातें करते हैं। लेकिन बातें करते हैं, वो बातें करते हैं, बहुत सारे लोग उसको बातें करते हुए दिखाई देते हैं, खिलखिलाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इन चेहरों में उसे अपने माता पिता कहीं दिखाई नहीं देते। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. "How did you get here, child? Whose baby are you?" the man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, "I want my mother, I want my father." The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. "Will you have a ride on the horse?" he gently asked as he approached the ring.
child's throat tore into 1,000 shrill sobs, and he only shouted, I want my mother, I want my father. देखो स्टूडेंट्स, बच्चे का मन भी कैसा होता है ये हमें अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, कि वो बच्चा थक हार करके एक जगह रुक जाता है और खूब ज़ोर ज़ोर से रो करके चिल्लाता है कि मुझे अपने पापा चाहिए, मुझे अपनी मम्मी चाहिए। हंसता हुआ चेहरा, हंसते हुए उसको कई चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपने माता पिता को याद कर रहा होता है। थोड़ी देर रोने और सुबकने के बाद, सुस्ताने के बाद, जब उसमें थोड़ी सी एनर्जी वापस आती है तो वो फिर से दौड़ने लगता है। इस बार वो ऐसी जगह दौड़ता है, ऐसी जगह जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आती है उसको। कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर ज़्यादा भीड़ उसको नज़र आ रही है वहाँ पर वो घुस जाता है, और घुसने के बाद वो देखता है कि हर एक जगह इंसान, जेंट्स, लेडीज़, बच्चे, इतने सारे लोग हैं कि जो है कंजेशन हो रहा है। कंजेशन का मतलब स्टूडेंट्स होता है बहुत ज़्यादा भीड़। सो स्टूडेंट्स, कंजेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भीड़ होना। तो बहुत ज़्यादा भीड़ के बीच में वो घुस जाता है और मेन और वुमेन के बीच किसी के पैरों के नीचे घुस जाता है और बार बार चिल्लाता है उस भीड़ के अंदर जाकर के, मम्मी पापा, मम्मी पापा। भीड़ के अंदर से गुजरते हुए वो एक मंदिर तक पहुंचता है जहां थोड़ी सी भीड़ कम होती है, रादर ज़्यादा। थिक मीन्स ज़्यादा, थिन मीन्स कम। द क्राउड बिकेम वेरी थिक। वो किसी मंदिर के पास पहुंचता है और वहाँ पर भीड़ और भी ज़्यादा गहरी होती है, और भी ज़्यादा वहाँ भीड़ होती है। वहाँ पर वो देखता है कि इंसान एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, कई सारे भारी भरकम लोग हैं, कई सारे ऐसे डरावने लोग हैं जिसकी आंखें डरावनी हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिसके बहुत मजबूत कंधे हैं। अजीबोगरीब लोग उसको दिखाई देते हैं, बड़े विचित्र किस्म के लोग उसको दिखाई देते हैं। कई लोगों की आंखों में देख करके, कई लोगों की बनावट या हाइट या गठन देख करके वो डर जाता है, और कई लोग तो उसको उनके पैरों के बीच से वो गुजरने की कोशिश करता है, तो कई लोगों को पैरों से वो थोड़ा बहुत चोट भी खाता है, क्योंकि लोग बहुत ब्रुटल मूवमेंट कर रहे थे, बहुत तेज़ी से इधर उधर जा रहे थे, इस कारण से उसको थोड़ी बहुत चोटें भी लगती है। एक आध बार तो ऐसे भी होता है वो किसी के पैरों के नीचे आते आते बच जाता है, और इस तरह से चोट खाने के बाद, किसी व्यक्ति के पैरों के नीचे आने के बाद भी वो चिल्लाता है, माने व्यक्ति के पैरों के नीचे आते आते हुई स्थिति के बावजूद भी वो चिल्लाता है कि मम्मी पापा, मम्मी पापा। वो रुक नहीं रहा था, लगातार रो रहा था, लगातार चिल्ला रहा था और मम्मी पापा को ही याद कर रहा था। तभी अचानक एक आदमी, शायद वो भला आदमी था, उसकी नज़र उस रोते बिलखते माँ बाप को याद करते बच्चे पर पड़ती है, तो उसको शायद एहसास होता है कि ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। उस आदमी ने, एक अनजान आदमी ने उस बच्चे को अपने गोद में उठाया, और बड़ी मुश्किल से उठाने के बाद उसने कहा, रोते हुए बच्चे को धीरज बंधाया और कहा कि बच्चे तुम यहाँ कैसे आए, किसके बच्चे हो तुम? बच्चे ने उसको पूछा, भीड़ की तरफ इशारा करके बोला कि ध्यान से देखो, यहाँ तुम्हें अपने माँ बाप दिखाई दे रहे हैं क्या? सुन करके बच्चा और बुरी तरह से रोने लग गया और सिर्फ रो करके चिल्ला रहा था कि मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। अब जैसे कि रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए बड़े क्या करते हैं, बड़े लगातार उसे सांत्वना देते हैं, उसे धैर्य बंधाते हैं, और अगर किसी चीज़ को देने से वो चुप होता है तो बड़े उसको वो चीज़ देना भी चाहते हैं। उस आदमी ने उसको थोड़ा गोद में लेकर के आगे बढ़ा वो आदमी, और उसको बड़े वाले झूले के पास लेके गया। स्टूडेंट्स, ये वही झूला है जिसके बारे में वो बच्चा थोड़ी देर पहले चिल्ला करके बोलता है कि मुझे ये झूला चाहिए, मैं इस झूले में बैठना चाहता हूँ। उसी झूले के पास वो आदमी उसको लेके जाता है और पूछता है कि क्या तुम इस झूले में हॉर्स राइडिंग करोगे? झूले का जो टॉय है घोड़े के आकार का, उसमें बैठ करके तुम राइडिंग करोगे? बच्चा का गला और रुआंसा हो गया। वो चिल्ला करके एक ही बात बोला कि मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra.
Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain. I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. I want my mother, I want my father. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? तो देखो क्या होता है कि वो आदमी उसको जब झूले में बैठाने की बात बोलता है तो वो बच्चा मना कर देता है। एक ही बात बोलता है कि मुझे अपने पापा और मुझे अपनी मम्मी चाहिए। तब वो आदमी उसको गोद में लेकर के और आगे बढ़ता है और उस सांप का खेल दिखाने वाले स्नेक चार्मर के पास आता है, जो अभी भी बीन बजा रहा था और उसकी बीन पर वो कोबरा डांस कर रहा था। बच्चे को उस आदमी ने बोला, देखो बच्चे कितना अच्छा म्यूज़िक है, देखो कितना अच्छा म्यूज़िक है। उसने बड़े प्यार से उसको बोला, लेकिन बच्चे ने अपने कानों को बंद कर लिया, अपनी उंगलियों से कानों को बंद करके वो बोला कि मुझे अपनी मम्मी और मुझे अपने पापा चाहिए। अब की बार आदमी उसको बैलून्स बेचने वाले के पास, तो जब उस आदमी ने उसको उस सांप वाले के पास लेकर आया तो आदमी ने कहा कि देखो ये सांप वाला कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर बीन बजा रहा है। लेकिन उस बच्चे को वो बीन की आवाज़ जो कुछ देर पहले बहुत अच्छी लग रही थी, अब उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और उसने अपने कानों को अपनी उंगलियों से बंद किया और ज़ोर से चिल्ला करके बोला कि मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। ठीक है, तो आदमी अब की बार उसको बैलून बेचने वाले के पास ले जाता है, ऐसे व्यक्ति के पास ले जाता है जो ढोल बेच रहा था, बैलून रंग बिरंगे बेच रहा था। सोचा उस आदमी ने कि इस बच्चे को अगर बैलून बेचने वाले के पास ले जाएंगे तो बच्चे को बैलून बहुत पसंद आएगा और बच्चा शायद रोना बंद कर दे। लेकिन चूंकि उस बच्चे ने अपने माँ बाप से, वो बच्चा बिछुड़ गया था, तो वो मेले में अपने माँ बाप से बिछड़ने के कारण उसको सिर्फ अपने माँ बाप ही याद आ रहे थे। उसको थोड़ी देर पहले जो वो चीज़ें अच्छी लग रही थी, सांप वाला अच्छा लग रहा था, उसको झूला झूलना अच्छा लग रहा था, उसको बैलून अच्छा लग रहा था, अब शायद उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, वो आदमी उसको बैलून वाले के पास लेके आया और उसको बोला, तुम्हें रंग बिरंगे बैलून चाहिए बच्चे? आदमी ने बड़े प्यार से, बहुत अपनेपन से उस बच्चे से पूछा, लेकिन बच्चे ने अपनी आंखें रंग बिरंगे बैलून से घुमाते हुए, फेरते हुए कहा, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। वो आदमी अभी भी लगातार उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। आदमी ने उसको अब गोद लिए वो आदमी और आगे बढ़ा और उसको उस मेले के गेट के पास लेकर के आया जहाँ पर एक फूल वाला फूल बेच रहा था। और उस आदमी ने उस बच्चे को कहा कि देखो बच्चे, कितने खूबसूरत फूल है, कितनी खूबसूरत इनकी खुशबू है, क्या तुम एक गुलदस्ता लेना चाहोगे और एक फूलों का हार लेना चाहोगे और उसको अपने गले में पहनना चाहोगे? तो देखो उस बच्चे ने क्या जवाब दिया। उस बच्चे ने जवाब दिया, द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his sob, I want my father, I want my mother. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my father, I want my mother. Written by मुल्क राज आनंद। तो उस आदमी ने जब उसको उस फूल वाले के पास लेकर के आकर के पूछा कि कौन सा फूलों का हार लेना चाहोगे, तो बच्चे ने अपना चेहरा घुमा लिया और रो करके एक ही बात बोला कि मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। फिर अंत में उस आदमी ने फिर से उसको कोशिश की एक बार और चुप कराने की। अब की बार वो आदमी उसको एक मिठाई की दुकान के पास लेकर के आया और मिठाई की दुकान के पास ला करके पूछता है कि बच्चे, कौन सी मिठाई लोगे, बोलो, जो मिठाई बोलोगे मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ। लेकिन बच्चे ने मिठाई की तरफ से भी मुंह फेर लिया और रोते हुए, सुबकते हुए, दुख भरे अंदाज में एक ही बात कही कि मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है जो हम लोगों ने आपके सप्लीमेंट्री रीडर की पहली कहानी पढ़ी, द लॉस्ट चाइल्ड। हमने देखा कि किस तरह से
एक बच्चा, छोटा बच्चा 6-7 साल का, जो अपने माता पिता के साथ किसी मेले में घूमने गया है, माता पिता से वो बार बार मेले में घूमने के दौरान बहुत सारी फरमाइशें करता है कि मुझे ये महंगा वाला खिलौना चाहिए, मुझे ये महंगी वाली जो है फूलों का गुलदस्ता चाहिए, मुझे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ चाहिए, मुझे झूले में झूलना है। ये अलग अलग प्रकार की ख्वाहिशें वो अपने माता पिता से करता है, लेकिन हर बार उसके माता पिता पैसों की कमी के कारण उसको मना कर देते हैं। बच्चा बार बार जिद करता है, रोता तो नहीं है लेकिन नाराज़ जरूर होता है। चलते 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 जब आखिरी बार वो समय एक समय ऐसा आता है जब वो झूले के पास आकर के जिद कर बैठता है कि मैं झूले में तो जरूर झूलूंगा, और ये बोल करके जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उस भीड़ भरे माहौल में, वो मेले में अपने माता पिता से बिछुड़ चुका है। उसके माता पिता भीड़ में गुम हो गए हैं, वो भीड़ में अपने माँ बाप से अलग हो गया है, और तब वो भूल ही जाता है कि मुझे क्या चाहिए। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, यहाँ वहाँ बहुत घूमता है, बहुत छटपटाता है, खूब रोता है, और पूरे मेले में भीड़ के बीच में किसी आदमी के पैर के नीचे से घुस जाता है, किसी आदमी के, दो आदमी के बीच से निकल जाता है, किसी मंदिर के सामने भी चला जाता है। हर जगह जा जाके वो दूर दूर यहाँ वहाँ भाग करके वो सिर्फ यही चिल्लाता है कि मम्मी पापा, मम्मी पापा, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको माँ बाप कहीं दिखाई नहीं देते। तभी एक अमीर आदमी उस बच्चे को पकड़ता है, और अमीर आदमी भला आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। उस आदमी के पास उस आदमी का दिल बहुत अच्छा था। उस आदमी ने उस बच्चे को अपने गोद में ले लिया और उस बच्चे को बोला कि बच्चे, मुझे लगता है कि तुम अपने माँ बाप से बिछुड़ गए हो, क्या इस भीड़ में देख करके बोलो तुम्हें अपने माँ बाप कहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बच्चे को उसके माँ बाप दिखाई नहीं देते कहीं भी, शायद इधर उधर निकल गए होंगे, नहीं दिखाई देते। तो उस आदमी ने उस बच्चे को चुप कराने की बहुत कोशिशें की। उस आदमी ने उसको पहले झूले के पास लेके आया, बोला कि मैं तुमको घोड़ा वाला झूले में झुलाना चाहता हूँ, झूलोगे? बच्चा मना कर देता है, बोलता मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। फिर वो आदमी उसको सांप वाले के पास लेके आता है, जो बीन बजा करके सांप का नाच दिखा रहा था। थोड़ी देर पहले उसको वो सांप का नाच बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन अब उसको अच्छा नहीं लगता। वो आदमी आके बोलता है कि बेटे सांप वाला नाच देख लो। बच्चे ने कोई इच्छा जाहिर नहीं की। उसके बाद वो जो आदमी था वो उसको बैलून वाले के पास लेके आता है, बोलता है बैलून खरीद लो। तब भी बच्चे ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी मम्मी चाहिए और मुझे अपने पापा चाहिए। फिर उस आदमी ने उसको एक फूल वाले के पास लेके आया, बोला फूल ले लो, कोई हार लेकर के गले में पहन लो, देखो कितना खूबसूरत हार है। लेकिन उसके लिए भी उस बच्चे ने ना किया, वो एक ही जिद लगाते रहा कि मुझे पापा चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। अंततः उस आदमी ने उसको एक आखिरी बार पूछा कि बच्चे मिठाई ले लो। एक मिठाई की दुकान के पास ला करके उसको पूछा गया कि तुम्हें जो मिठाई पसंद है वो ले लो। लेकिन बच्चा अंत तक ये बात बोलता रहा कि मुझे सिर्फ अपनी मम्मी चाहिए और सिर्फ अपने पापा चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, या हमें इस कहानी से एक शिक्षा तो नहीं कहूँगा, इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बड़े से बड़ा आदमी चाहे वो कितना भी उस बच्चे को प्यार दे दे, उसके माँ बाप की जगह नहीं ले सकता। तो ये बहुत ही मज़ेदार कहानी थी। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये कहानी को मैं यहीं, मतलब ये कहानी को यहाँ हम लोग कंप्लीट करके स्टॉप करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डील विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। अगली क्लास में थिंक अबाउट इट 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। और माई just suggestion to you is this, that if necessary you just replay the video again in order to understand the chapter. After doing the question answers of this chapter 1, you will start your next book Beehive. ये मोमेंट्स का चैप्टर 1 जब मैं आपको लिखवा दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम लोग आपका Beehive का चैप्टर 1 शुरू करेंगे, ठीक है। फिर Beehive का चैप्टर 1 मतलब एक Beehive का चैप्टर करेंगे और एक मोमेंट्स का चैप्टर करेंगे। जैसे ही मूवमेंट का एक चैप्टर कंप्लीट होता है हम लोग Beehive का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, Beehive का कंप्लीट होता है तो फिर मूवमेंट का स्टार्ट करेंगे। साइमल्टेनियसली ये चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू वेरी मच।